started focusing on waste management as our first area where we want to build some technologies. What we're looking at here is called the NeoX incinerator. It is a smart incinerator that essentially is by far the cleanest incineration device in the market currently. It can reach up to 1200 degrees Celsius, which is the global standard for incineration. That's what the IPCC, which is the Intergovernmental Panel of Climate Change, has decreed that anything above 1100 Celsius is clean incineration. And what we are able to do with this is by consuming less than 1 rupee of electricity, we are able to remove about 98% of the emissions that come as a part of the incineration process. सर मशीनरी को देख के इसका वर्किंग प्रोसेस पता करते हैं कैसे है? Ma'am, essentially it works like a smart dustbin. From a user perspective, all we have to do is open the lid, put the waste and walk away. And that's about it. वेस्ट right? लाइक It handles non-recyclable, reject categories of waste. So anything which is either in the biomedical space or is in the sanitary space, which requires, it's a hazardous waste essentially and requires special treatment, and there is no other solution except to incinerate it. That type of waste is what we work with. So we work with like schools, colleges for sanitary napkin disposal. We work with pharmaceutical companies for medical waste. We work with large offices, tech parks in their food court where they have like MLP, chips packets, Tetra Pak, this kind of waste which can't be recycled. So the objective for us is to tackle the profile of waste that currently gets sent to landfill, and basically we want to avoid any waste being sent to landfill. That's the ultimate objective. तो सर कितना टाइम पीरियड लगता है इसको रिसाइकल होने में? Ma'am, so each cycle will take about 15 to 20 minutes of operational time, and in a day it can handle about like 300 liters of waste, which is like आपके घर के बाहर जो बड़ा सा ग्रीन बिन रहता है, it can handle that much waste in one day. सर दिखाएंगे दे रहे हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ये एक साइकिल में about 20 liters handle करता है. सर दिखाएंगे. बिल्कुल. So like I said, it's just like a dustbin. From user perspective, हम सिर्फ बस खोलें, अपना वेस्ट डाल दें और बंद कर दें. That is it. तो मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि जब वो फुल है, and it automatically locks down, starts the process. Once the waste is disposed, it will again open itself up, and you can add more waste. तो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है मैम. जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं है. ऑटोमेटिकली मशीन जान जाती है कि वो कब फुल है और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. तो सर जैसे मशीन है तो ये इस मशीन का CPU यूनिट है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारे. तो ये बेसिकली इसका ब्रेन है, आप मान लीजिएगा. तो इसमें ये सारे प्रोसेसेस यहाँ कंट्रोल करता है. जब वो इंसिनरेशन चलता है तो ये हर सेकंड बाय सेकंड उसको मॉनिटर करके इट मेक श्योर दैट इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल. सो वी वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एमिशन. सो इट इज़ रेगुलेटिंग व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड टू ऑलवेज गेट द क्लीनेस्ट इंसिनरेशन. दैट इज व्हाट इट डज. और जो अपर वाला है वो उसका क्या वर्क है? सेकेंडरी चेंबर मैम. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को इंसिनरेट करते हैं तो उसमें फ्लाई ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं. तो वो ऐश पार्टिकल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं. तो हमारे एमिशंस में एक तो कोई पार्टिकुलेट मैटर नहीं रहता, एंड जनरली लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर 98% क्लीनर देन द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स एट द मोमेंट. ओके. तो सर इसको लगाने के इंस्टॉल करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा और रनिंग कॉस्ट क्या आएगी? यहाँ जो देख रहे हैं इतना ही एरिया, ये दीवार पे लग जाती है. जैसे ये जो बूथ आपको दिख रहा है, ये हमने आउटडोर लोकेशंस के लिए बनाया है, जहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली हम रॉयल एनफील्ड के साथ हिमाचल में काम कर रहे हैं. तो जैसे वहाँ पे रिमोट एरियाज में इट कांट बी इंस्टॉल्ड इनसाइड, वी आर मेड फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन. दैट्स अबाउट इट. बट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, लाइक आई सेड, इट्स कंज्यूमिंग ओनली 0.15 यूनिट्स पर cycle that it's running, which is less than 1 rupee. So it's dropping your cost. Let's say I'll give you an example. In hospitals, they spend from anywhere 50 to 70 rupees per kilo of waste to treat that waste. We are able to bring that down to less than 2 rupees per kilo. ओके. That is the kind of डिफरेंसेस cost इतना आ जाता है? Yes. ओके. तो सर इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी? Very minimal. आप महीने का 500-600 रुपये इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स अबाउट इट. ओके. Yeah. तो ये कमर्शियल उसमें चलेगा या फिर डोमेस्टिक में भी चल सकता है? Domestic में it works on a 15 amp 3 पिन कनेक्शन. जैसे किसी के आपके माइक्रोवेव या फ्रिज जो पिन पे चलती है उसी पिन पे चलती है. ओके. तो क्या कॉस्टिंग होगी इसकी? 1,50,000. तो आपकी इंडस्ट्री को कितना टाइम पीरियड हो चुका है? मैम हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं पिछले 8 साल से, और हमारे पेटेंट्स
करीब 4 साल लगे हमको पेटेंट्स मिलने में। उसके बाद वी वर रनिंग एज LLP बट एज अ प्राइवेट लिमिटेड वी गॉट इनकॉर्पोरेटेड 2022। तो सर ये लेके आए हुए हो तो रिस्पॉन्स कितना है? हम सो फार पॉजिटिव है। आज तो पहला दिन है बट 3 दिन में पता सर मार्केट में क्या? मार्केट में so far we have received fantastic response, especially from like the corporates that I told you. उनके ऑलरेडी लीगल मैंडेट रहते हैं कि उनको वेस्ट एक स्पेसिफिक वे में, सस्टेनेबल वे में ट्रीट किया जाए। तो ये मशीन नॉट जस्ट फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव ये सारा डेटा भी कैप्चर कर लेते हैं और उनको रिपोर्ट भी देता है कि आपने इस महीने में इतना वेस्ट हैंडल किया, इतना आपको कार्बन एमिशन बच तो गया। इससे रिलेटेड एक ऐप भी होता है क्या? जी मैम, Okay. कम्प्लीटली स्मार्ट डिवाइस वो एक आपके साथ आता है, तो उसमें आप लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि हमारे मशीन में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, एंड इट टेल्स यू हाउ मच ऑफ कार्बन एमिशन यू हैव ऑफसेट। इट गिव्स यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। सो फॉर कॉर्पोरेट्स इट बिकम्स वेरी वायबल। फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैम, लाइक देयर आर करंटली sanitary napkin incinerators. Everybody who has used these products know that they don't meet the emission norms, or their lifetime is very short. Within a year it breaks down, there are some problems. So all schools we have worked with, they are happy to adopt this because we are guaranteeing an 8 to 10 year lifetime on these products. सर अभी तक आपने कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं मशीन? We work with like I said, wide type of clients. हम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में कर्नाटका रोटरी क्लब के साथ इंस्टॉल किए हैं। We work with Airtel in Delhi in their data centers. They have our machines now. We work with Royal Enfield in Himachal. We are working with Strides Pharmaceuticals, like fairly wide, ma'am. We work with Bangalore International Airport. We have done pilot projects there. We work with the government of Goa in one of their material recovery facilities. Our machine is installed. So it's fairly wide use case, and we are finding pretty good response from the market so far. तो सर जैसे कोई इंस्टॉल कराना चाहता है मशीनरी को तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट होगा? हम डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे www.neosanitation.net आप आके विजिट कर सकते हैं, या फिर यू कैन रीच आउट टू मी एट 9036465295। मेरा नाम नितिन है। आई हेड मार्केटिंग एट नियोसान। यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली और via the website. You can also email us at info@neosanitation.net. सर ने अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया है, ईमेल भी बता दिया है। सर का मैं विजिटिंग कार्ड लेके विजिटिंग कार्ड भी लगा दूंगी। बिल्कुल प्लीज़ आप एक zoom ये कर देखिए सर का लीजिएगा। विजिटिंग कार्ड है, स्कैनिंग कोड भी है, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो ये भी जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी का मार्केट फ्यूचर क्या है? मैम तो ये तो हमारा पहला प्रोडक्ट है। हम अभी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो एक तो कैपेसिटी इंक्रीज़ करें और जो वेस्ट प्रोफाइल इंक्रीज़ करें। तो हम अभी 1 टन पर डे वाले लार्ज मशीन्स बना रहे हैं जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज, केमिकल, फार्मास्यूटिकल में जाएंगे। उसके बाद वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मेक लाइक मच लार्जर मशीन्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट स्पेस, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू अदर सेक्टर एज वेल। थैंक यू सर अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए।